Yes, Jai Gurudev children. Beta, in last period, we have learned up to the exercise 12.2. Okay, in that class, we had learned about the arms and the vertices and the how to write the name for any angle. In today's class, we are going to learn how to make the angle with the help of the protractor. Okay, maybe everybody of you have seen protractor and you all are able to read the protractor. Okay, see that here beta. I am just going to tell you how to read the protractor. Okay, see, this is your protractor. Okay, it is the midpoint. From here we can make the angle. Okay, if you will see the protractor beta, you can see that by zooming the protractor also I am showing you. Here is also 0. If you are, it will should be visible to you, and here is also 0. Okay, it depends that from which side we are making to angle, which point we are going to make the angle. Okay, there are always 2 points for making an angle in any line. Okay, just try to understand that first, then only we can understand the things. Okay, see that beta. Suppose this is a line. Okay, I am going to draw a line here. Maybe in by the pencil it will not be visible to you, so I am going to make it by pen. See that beta, here I have drawn a line segment. Okay, naming as A and B. Okay, its name is A and B. A is internal point of the line segment and B is external point of the line segment. Okay, A को क्या कहते हैं, internal point, और B को क्या बोलते हैं बेटा, external point. Whenever we will make the angle by the protractor, at that time we can make from both internal or external points. Okay, that's why according to that situation we will use the scale of the protractor. Are you getting me? According to that situation we will use the scale of the protractor. For that purpose, in the protractor also you have given 2 scales. Okay, while you will make, see that beta, 2 scales are going on the protractor. See it here, one from 0, 10, 20, 30. This is internal. एक इसमें इंटरनल स्केल चल रहा है और एक अगर आप देखें बेटा इसमें, तो एक इसमें आउटर स्केल चल रहा है. दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, एक ये आउटर स्केल चल रहा है, ये चल रहा है. देखो यहाँ, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 और 90 दोनों का कॉमन है. और एक देखो यहाँ से चल रहा है 0, 10, 20, 30. ये देखो, ठीक है, ये अंदर की तरफ एक स्केल चल रहा है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, और जो बाहर वाला स्केल है बेटा वो यहाँ से शुरू हो रहा है. यू कैन सी फ्रॉम हेयर इन दिस वे. ओके, नाउ वी वुड लाइक टू मेक द एंगल फ्रॉम द इंटरनल पॉइंट. सपोज I am zooming it so that you can see it. Okay, see it beta. It is internal point written over here. It is external point. Now I would like to make, और जब हमें एंगल बनाना होता है हम इसको क्या करते हैं, ये जो कॉमन, ये जो पॉइंट है, ये जो टिप है, ठीक है, कौन सा वाला, ये देखेंगे ये वाला, इस पॉइंट को उस पॉइंट के ऊपर रखते हैं जहाँ से हमको एंगल बनाना है. यू कैन सी फ्रॉम हियर इन दिस वे. See that how I am keeping. Maybe it will be visible to you. See that it was point. Okay, and how I am keeping. ये देखो, ये है, ये हमने इसको ऐसे रखा. ये देखो, ये है ना, ये पॉइंट देखो, ये वाला देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इसको हम अपने पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इस वाले को. ये देखो, ये देखा आपने, इन दिस वे. ओके, और ये जो लाइन है, ये जो बेस लाइन है ना बेटा, इससे आपकी लाइन कवर हो जानी चाहिए. बेस लाइन जो है ना, ये आपकी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, जो भी आपने लाइन सेगमेंट बना रखा है. यहाँ देखेंगे ऐसे, तब आप एंगल बनाएंगे. ठीक है, आप इंटरनल पॉइंट से बना रहे हैं. यू आर मेकिंग फ्रॉम द इंटरनल पॉइंट नाउ. ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू,
इंटरनल पॉइंट से बनाने में आप कौन सा स्केल पढ़ेंगे? इंटरनल स्केल पढ़ेंगे। इंटरनल पॉइंट से बनाने में आप इंटरनल स्केल को पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरनल स्केल को कैसे पढ़ेंगे आप? शायद आपको दिख रहा होगा अब अच्छे से, है ना। इंटरनल पॉइंट से अब आपको इंटरनल स्केल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके, अब ये जो इंटरनल स्केल चल रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंदर की तरफ वाला स्केल, सपोज मुझे इस पर 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इंटरनल पॉइंट के लिए मैं इंटरनल वाले स्केल को पढ़ूंगी। या यहाँ से आप जब इसको यहाँ रखेंगे ना बेटा, तो जीरो, आप जहाँ से आपका जीरो स्टार्ट हो रहा है उस स्केल को आपको पढ़ना है। तो जीरो देखिए अंदर वाली स्केल पे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 10, 20, 30 और 40 एंड आई विल मेक अ स्मॉल डॉट हियर ऑन द पेपर। Okay, and now what I will do, this is a small dot here. Now I will join it here in this way, and it will be an angle of 40 degree. It will be an angle of 40 degree. Okay, up now same angle I am going to make with the outer point. Now same angle I am going to make from आउटर पॉइंट। अब इसी एंगल को बेटा मैं क्या करूँगी? आउटर पॉइंट से बनाऊंगी। फॉर दैट अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ लाइन, स्मॉल लाइन। ओके, हियर आई हैव मेड वन लाइन सेगमेंट। ओके, आउटर पॉइंट मीन्स, आउटर और एक्सटर्नल पॉइंट मीन दिस विल बी आउटर पॉइंट। दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, नाउ अगेन आई विल कीप this point of the protector over my point in this way। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो लाइन है, जो हमारी बेस लाइन है ये वाली, इससे हमारी लाइन पूरी तरीके से ढक जानी चाहिए, कवर होनी चाहिए। ओके, ये इस तरीके से पूरी कवर हो जानी चाहिए। यहाँ देखेंगे आप, ओके, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये थी लाइन, ये हमने पॉइंट रखा। ये लाइन जो है बेस नीचे वाली, ये जो लाइन है ये हमारी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये वाली, ये दिख रही है आपको? कौन सी वाली बेटा? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये आउटर और ये पॉइंट जो है ये हमारे इस पॉइंट के ऊपर कवर अप होना चाहिए। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये देखिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ तो बाहर हो गया इस वाले स्केल में, तो अब आप देखेंगे यू कैन सी दैट हियर नाउ जीरो। अब की बार जीरो देखिए कहाँ आया? आउटर वाली स्केल पर जीरो है, ठीक है। अब कहाँ है जीरो? आउटर वाली स्केल पर है। आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 40 का। सो व्हाट यू विल डू, 10, 20, 30 और 40। 40 है ना, यू कैन मार्क ओवर हियर इन दिस वे। ओके, अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है और यहाँ इसको पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ये ओके, तो ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा आपका? ये रे बनी आपकी, क्योंकि 1 पॉइंट फिक्स्ड है ना, और इन वन साइड वी कैन एक्सटेंड। तो ये जो एंगल बनेगी बेटा, ये एंगल कितने का है? 40 का। अब आप देखिए कैसे हमने आउटर और इंटरनल पॉइंट से एंगल्स को बनाया है। ओके, सो इन दिस वे वी विल मेक द एंगल। मे बी अप टू हियर इट विल बी क्लियर टू you. Here all the angles in question number 2 exercise 12.3 is given to you. You will make all the angle from the external as well as outer point. आप उनको इंटरनल पॉइंट से भी बनाएंगे और एक्सटर्नल पॉइंट से भी बनाएंगे। एंड वेन एवर आई विल टेक द एग्जाम एट दैट टाइम ऑल्सो आई विल आस्क यू इन द क्वेश्चन दैट मेक दिस एंगल ओनली बाई दिस पॉइंट ओनली। जब हम आपको एग्जाम में भी देंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको कंडीशन देंगे कि आपको इस पॉइंट से एंगल बनाना। अगर इंटरनल से बोला है तो इंटरनल से ही बनेगा। अगेन सी बेटा, हियर सपोज आई हैव ड्रॉन वन लाइन। ये अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग बेटा। इट विल बी आउटर पॉइंट, आउटर और एक्सटर्नल बात एक ही है, आउटर पॉइंट एंड दिस विल बी योर इंटरनल पॉइंट।
This point will be your internal point. Okay, internal point. When you will make for internal point, ऐसे याद रखो, internal point, internal scale can be read. Internal scale can be read. इंटरनल स्केल को आप रीड करेंगे. और आउटर पॉइंट के लिए आप आउटर स्केल यू विल रीड. आउटर स्केल यू विल रीड. आई हैव रिटन ओवर हियर कि आपको यहाँ मैंने समझा भी दिया है बेटा. यहाँ देखेंगे, फिर से देख लीजिए एक बार और. ये आपकी 0, 10 ये अंदर वाली स्केल है, और एक स्केल आपका बाहर की तरफ चल रहा है, ये वाला, जिसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 0, 10, 20, 30. ये बाहर की तरफ को स्केल है, एक अंदर की तरफ को स्केल है. ओके, सो बोथ द स्केल, कौन से पॉइंट पर कौन सा स्केल पढ़ना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एंड मेक द करेक्ट एंगल वेन एवर इट विल बी गिवन टू यू. अदरवाइज द चिल्ड्रन आर ऑलवेज डूइंग मिस्टेक. ओके, children are always making mistake here. That's why I am teaching you from both the points. Okay, otherwise you know now that types of angles you have learned in earlier classes also. 0 to 90, 0 to 90, it means less than 90 degree are what kind of angles? Acute angles. Acute angles. फिर 90 to 180 degree, what kind of angles will be? Obtuse angle. Obtuse angles. Okay, and then exact 90 degree, it means it's less than 90. 90 is not coming, means till 89 we can take here. So 90 से जो छोटे एंगल है, those will be the acute angle. 90 to 180 means greater than 90. Okay, and exactly the angle of 90 degree will be the right angle. Will be the right angle. Exactly 180 degree angle will be the straight angle. And 0 angle means which will have 0. Then reflex angle. Reflex angle means more than 180, greater than 180 and less than 360. These between the angles between 180 and 360 are known as the reflex angle. Okay, again just see, less than 90 degree, all the angles less than 90 degree will be of acute angle. 90 to 180 degree beta, obtuse angle. Exact 90 degree angle will be the right angle. 180 degree exact, that will be straight angle. Reflex angle means greater than 180 and less than 360 degree. Maybe up to here it will be clear to you. Okay, now we are coming to the exercise 12.3 and see that what is given to you in exercise 12.3. अब आप देखेंगे कि 12.3 में आपको क्या बोला गया है. सी हियर नाउ, कम टू योर बुक बेटा. ओके, मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. यू हैव टू मेजर द एंगल. तो हाउ यू विल डू, ये जो है फ्रॉम विच पॉइंट दिस एंगल हैज मेड, इंटरनल पॉइंट. सो यू जस्ट कीप योर दिस टिप, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, यू कैन एंड कवर दिस लाइन बाय दिस बेस लाइन. ये आपकी जो लाइन है ये किसके ऊपर आएगी, बेस लाइन के ऊपर आएगी, इस तरीके से. सी दैट हियर, सी बेटा. See how I have. Okay, and if you will read the angle value of this angle, it is near about 43 to 44 degree angle, it is that. Okay, so you can measure this. Now see that this angle also we have to measure.
हमको ये वाला एंगल भी मेजर करना है. सो हाउ वी विल मेजर दिस एंगल? सी दैट हाउ आई एम कीपिंग बुक नाउ. ये वाला एंगल है ये, ठीक है. ये आपका जो है ये इस समय ये वाला इंटरनल पॉइंट है जो हमारे अंदर की तरफ होता है. राइट हैंड साइड का पॉइंट आर ऑलवेज आउटर पॉइंट. आउटर पॉइंट से बन रहा है ये एंगल. सो आप इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे. ये रखा हमने, ठीक है. और ये जो लाइन है, जो प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन है, ये इसको कवर करनी चाहिए इस तरीके से. ये देखिए. ओके बेटा. सो सी दैट इट इज़ हाउ मच. आप देखेंगे कौन सी लाइन पर मीट कर रहा है ये. 30 डिग्री वाली लाइन को मीट कर रहा है. कितने का एंगल है ये? 30 डिग्री का. मे बी इट विल बी विजिबल टू यू ना. यहाँ देखते जाइए, है ना. जीरो कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे इसमें? आउटर स्केल से पढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है. आउटर पॉइंट है वैसे भी, तो आउटर स्केल पढ़ेंगे तो 30 डिग्री पर मैच हो रहा है. तो ये आप ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ई. हियर नाउ ई पॉइंट. ई पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये तो सीधे मुझे दिख रहा है कि 90 डिग्री वाला एंगल, लेकिन फिर भी हम आपको मेज़र करके बता रहे हैं, ठीक है. फिर भी मैं आपको मेज़र करके बता रही हूँ. आप देखेंगे कि कैसे हम इसको मेज़र करेंगे. सी इट नाउ. हियर राउंडर को हमने ये रखा. ये देख रहे हैं, ये लाइन हमारी जो बेस लाइन है वो इससे पूरी कवर अप हो जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है. सी इट नाउ. कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले तो पॉइंट पहचानो. ये बेटा इंटरनल पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है. तो आप यहाँ रखिए इसको ऐसे, ठीक है. ये लाइन आपकी बिल्कुल कवर अप हो जानी चाहिए नीचे वाली. ये देखिए. अब आप देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री वाली लाइन पे चल रहा है. देख रहे हैं कितने का एंगल है ये? 90 डिग्री का एंगल है. मे बी एवरीबडी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ टू मेजर द एंगल. ये वाला एंगल अब हमको मेजर करना है. यहाँ देखेंगे ये है एंगल. अब आप देखो, ये मैंने रखा. पहले आप ये समझो कि ये कौन से पॉइंट से एंगल बन रहा है. बाय विच पॉइंट दिस एंगल इज फॉर्मिंग. इट इज इंटरनल पॉइंट. सो नाउ कीप द प्रोटेक्टर हियर. आप अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर रख देंगे ऐसे करके. ये रखा हमने, है ना. और कौन सा स्केल हम इसके लिए पढ़ेंगे बेटा? जहाँ जीरो आ रहा हो बेस लाइन पर. इंटरनल. देखिए मैं जूम करके भी आपको और ज़्यादा जूम करके दिखाती हूँ. ये देखेंगे यहाँ जीरो इंटरनल वाली स्केल पे चल रहा है. आउटर स्केल पे क्या चल रहा है? देखो आउटर स्केल पे, देखो आउटर स्केल पर नहीं चल रहा. आउटर स्केल पर अंदर की तरफ को, यहाँ हमारा जो लाइन के ऊपर जो जीरो है वो कहाँ पर आ रहा है? इंटरनल स्केल पर आ रहा है, ठीक है. तो अब आप पढ़िए इसको, कितनी है इसकी वैल्यू. सी दैट बेटा. यहाँ देखेंगे, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, है ना. कितने डिग्री का एंगल है ये देखिए. इट इज एन एंगल ऑफ इट इज नाउ. आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइन के नीचे हमारी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही हैं. बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए, तब आपका एग्जैक्ट एंगल निकल के आएगा. अब नाउ सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. ओके बेटा, इट इज 140. कितनी आ रही है इसकी? रीड कर रहे हैं हम तो कितनी वैल्यू है इसकी यहाँ पर? 140. क्योंकि ये लाइन देखिए, ये दिख रही होगी आपको नीचे, अलग ही दिख रही है. एरो का निशान भी दिखाई दे रहा है नीचे एंगल का. कितना आ रहा है ये? 140 डिग्री. ओके. सो वन एंगल आई एम लीविंग फॉर यू. यू विल मेजर दिस एंगल योरसेल्फ. आप इसको खुद से मेजर करेंगे. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब हमको ये वाले एंगल, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग रूलर एंड प्रोटेक्टर. आपको रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से ये वाले एंगल बनाने हैं. ओके. नाउ वी आर कमिंग टू लर्न दीज एंगल फ्रॉम द इंटरनल और एज वेल एज आउटर पॉइंट. ओके. Now beta we have to make an angle of 110 degree. Okay.
So how we will make the angle of 110 degree? First of all, I am drawing one line segment from both the places. या पहले यहीं से बना लें. इंटरनल पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट. इंटरनल पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट. यहाँ से हम बनाएंगे. फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल मेक एन एंगल. विच एंगल? 110 डिग्री. ओके, बोथ द प्लेसेस 110 डिग्री एंगल वी आर गोइंग टू मेक. नाउ कीप योर प्रोटेक्टर. ये वाला पॉइंट मैंने जैसा आपको बताया, एंड द सेम वे वी विल कीप इट हियर. ओके, ये है. See that beta, I have make, this is our internal point. From internal point we have to make the angle. Okay, now keep your protractor this point. इस पॉइंट को आप यहाँ पर रखेंगे लाइन के वहाँ पर, और ये जो नीचे की बेस लाइन है ये वाली, इससे आपकी ये लाइन कवर अप हो जानी चाहिए. ये देखिए इस तरीके से. ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से. दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल लाइन से लाइन के ऊपर लाइन आ चुकी है. ठीक है, ये इस तरीके से. ठीक, बिल्कुल एक स्मॉल मार्जिन भी नहीं होना चाहिए लाइंस के ऊपर में. देखिए प्रोटेक्टर की लाइन ये दिख रही होगी, जो आपको अभी लाइन हटी हुई दिखाई दे रही है ये वाली, इसको मैं बिल्कुल इससे कवर अप कर दूंगी. ओवरलैप होनी चाहिए लाइन हमारी लाइन के साथ में जो हमने बेस लाइन बनाई ये वाली. ठीक है, नाउ ये आपका कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट. कौन सा स्केल पढ़ेंगे हम? इंटरनल स्केल. कितने डिग्री का एंगल हमको बनाना है इस पर? अब आप देखिए इस पर हमको कितने डिग्री का एंगल बनाना है. ये देखिए बेटा, इस तरीके से हमने प्रोटेक्टर रखा इंटरनल पॉइंट पर. हमने आपको क्या कहा था? इंटरनल पॉइंट के लिए इंटरनल स्केल को पढ़ेंगे. इंटरनल स्केल हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. और हमको कितना बनाना है? 110 डिग्री. तो 110 इज हियर. ओके, दिस इज 100 एंड 110 इंटरनल स्केल पर दिस इज द पॉइंट हियर. ओके, सो नाउ वी विल ज्वाइन बोथ द एंगल्स. बोथ द पॉइंट्स वी विल ज्वाइन देन. इन दिस वे इट विल बिकम रे. क्या बन गई? ये रे बन गई. ठीक है, ये यहाँ पर इट इज 110 degree. Okay, now come to here. In the same way I am going to make, अब की बार हम कहाँ से बनाएंगे? आउटर पॉइंट से बनाएंगे. Now we will make the same angle from the outer point. ये आप पहले today you just practice internal and outer point and just only learn that how to read the scale on internal or outer point. आज अगर आप इतना भी कर लेंगे तो it is enough for you. ओके, अब आप देखिए फिर से मैंने प्रोटेक्टर है इसको रखा, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं अपने आउटर पॉइंट पर रखूंगी ये इस तरीके से, और लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए सो दैट इट विल बी ओवरलैप टू ईच अदर इन दिस वे. ओके, नाउ यू कैन सी. अब हम क्या करेंगे बेटा? वी कैन मेक एन एंगल ऑफ हाउ मच? 110 डिग्री. कौन सा स्केल पढ़ने के लिए बोला है मैंने आपको? आउटर स्केल पढ़ने के लिए बोला है. यहाँ देखेंगे आउटर स्केल मीन्स जो बाहर की तरफ को स्केल है. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है, यहाँ देखेंगे 60 यहाँ तक हो गया. 70, 80, 90, 100 और 110. ये आउटर पॉइंट पर आउटर स्केल ये वाला ये पॉइंट हो गया. ठीक है, अब इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए इन दिस वे. ये हो गया. ये कितना आ गया आपका? 110 डिग्री. सो अब आप ये देख लीजिए, दीज आर रे. वन पॉइंट इज फिक्स्ड. ओके, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड फिक्स्ड पॉइंट. इन दिस वे बेटा वी विल मेक द एंगल्स फॉर इंटरनल और आउटर पॉइंट. इस तरीके से हम इंटरनल और आउटर पॉइंट से एंगल बनाएंगे. ओके, नाउ सी दैट वन मोर एंगल आई एम गोइंग टू मेक एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द एंगल वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास. आप आज इतना ही प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू मेक फ्रॉम इंटरनल एंड आउटर पॉइंट. ओके, इट इज आई हैव ड्रॉन वन लाइन हियर. ये कौन सा पॉइंट हम बनाएंगे? इंटरनल पॉइंट से. वी आर गोइंग टू मेक फ्रॉम द इंटरनल पॉइंट. सो आई एम गोइंग टू कीप द प्रोटेक्टर हियर. जस्ट सी दैट नाउ दिस इज आवर इंटरनल पॉइंट. आई विल कीप द प्रोटेक्टर हियर. मैं इस वाली टिप को, प्रोटेक्टर की ये जो टिप होती है ये आपको दिखाई दे रही होगी शायद, है ना, इसको यहाँ रखूँगी और ये बेस लाइन से बेस लाइन को हम कवर करेंगे. यहाँ देखेंगे सी हियर.
इन दिस वे. ओके, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए आपकी. ये सी दिस नाउ बाय जूमिंग इट आई एम शोइंग यू. ओके, इस तरीके से देख रहे हैं. इंटरनल पॉइंट ही हमारा यहाँ पर आ गया ये. ठीक, अब आपको कितनी डिग्री का एंगल बनाना है इस पर? 32 डिग्री का बेटा. आपका जीरो कहाँ आ रहा है? ये इंटरनल पॉइंट पे देखो, जीरो आपकी लाइन में कहाँ पर चल रहा है? यहाँ चल रहा है. यहाँ तो देखो 180 हो गया. इस स्केल को तो पढ़ नहीं सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होगा ना स्केल. तो इंटरनल के लिए कौन सा स्केल पढ़ रहे हैं हम? इंटरनल स्केल. अब 32 डिग्री का एंगल बनाना है हमको. 32 डिग्री का एंगल यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से 10, 20, 30 और ये देखेंगे 31 है ना, और 32. ये रहा हमारा 32. ओके, ये देखिए. नाउ ज्वाइन दिस. ओके, सो इट इज एंगल ऑफ 32 डिग्री. ये बन गया आपका एंगल. अब हमको आउटर पॉइंट से बनाना है. ये रहा हमारा आउटर पॉइंट. ठीक है, बाहर की तरफ का पॉइंट. इसको फिर से रखिए वैसे ही. देखिए, ये देख रहे हैं आप कैसे रख रहे हैं. ये इसको ऐसे रखेंगे ये, और इन दिस वे. ये हो गया. नाउ रीड द स्केल. अब आप देखिए यहाँ पर फिर से आपको दिखाते हैं. ये देखो, ये लाइन से बिल्कुल लाइन कवर अप होनी चाहिए. सी दैट नाउ ना, बेस लाइन इज नॉट विजिबल टू अस, प्रोटेक्टर लाइन इज कमिंग ओवर देयर. ओके, अब आप देखो बेटा 30. अब आप जीरो कहाँ है आपका? इसको अंदर वाले स्केल को अब नहीं पढ़ सकते आप. ये 180 से स्टार्ट हो रहा है. फ्रॉम हियर यू विल नाउ आउटर पॉइंट, आउटर स्केल. सो सी दैट 10, 20, 30 और 32. सो 32 इज हियर. देखो 32 इज हियर. ओके, इट इज 32 ना. अब इसको ज्वाइन कर दो. ज्वाइन इट नाउ. सो इट विल बी बेटा 32 डिग्री. ओके, see that now. So it is 32 degree. So you have seen how from the internal and outer point we will make the angles. So in this way, by drawing a column between the or divide your page in two parts and write in one side internal point and in one side outer point, and then make the angles. Just today only, till here you will learn, and in next class again one more time I will teach you the angles. But beta, just keep the things in your mind that from both the points we will learn two angles, and for internal point internal scale should be read, and for outer point outer scale should be read. If you will keep all these things in your mind, then you will not have any problem in making the angles. Otherwise the children are doing always till the 10th and 12th, they don't know how to make the angles. Okay beta, so do more and more focus on it. Practice more and more at your home in a playway method also. Whenever you are not and you don't want to learn, at that time just make the angles. Okay, again rest of the angles from your exercise we will learn in the next class. Till that, thank you and Jai Gurudev to all of you beta.